बीते रात को गुप्त सूचना से मिली जानकारी के आधार पर दुर्गापुर थाना के पुलिस ने अभियान चलाकर बेनाचौती के सुभाष पल्ली में किराएदार मकान से एक नकली जवान को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 एयरगन, सेना की वर्दी, टोपी, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी कागजात और एक बाइक भी बरामद की। नकली जवान का नाम हैदर बेगुला है। वह छत्तीसगढ़ के राजनंद गाँव का रहने वाला है। रविवार की सुबह को दुर्गापुर थाना के पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया और पुलिस की तरफ से 7 दिन के रिमांड की मांग की गई ताकि आरोपी को दुर्गापुर इलाके में किस मकसद से आया था इस बात की पता लगाया जा सके। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी अपने को इंडियन आर्मी का जवान बताकर घर पे किराए में रहता था। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने से वह यहाँ रह रहा है। आपका घर तो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर में क्या करने के लिए आए थे? हाँ, क्या करने आया था? हाँ, आर्मी का ड्रेस पहन के, कुछ ड्रेस पहन के सब बता दिए, पूछ लीजिएगा सर लोग। हाँ? सर लोग से पूछ लीजिएगा, सर को बता दिए हैं। आप बोलिए ना, किस लिए आए थे? आप आर्मी हैं? आर्मी नहीं है, हम इंस्टाग्राम यूट्यूब क्या बोलते जो है ड्रेस पहनते तो इन लोग ये लग गया। डुप्लीकेट गन सब जो है लेके और जंग बता रहा है और वो सब जो है आप लोग को वहीं से बच्चे खेलने वाला। आर्मी के नाम पे ऐसा कर सकते हैं आप? आर्मी के नाम से मैं यूट्यूब गूगल ही चलाता हूँ, तो मैं खुद मेरा पैसा आता है। आम लेके क्या करते थे? गले में लग के ऐसे मतलब वीडियो बनाते थे। आपका कौन सा नाम पे है? अरमान बेगलो का नाम है, इंस्टाग्राम चेक करिए तब आपको दूध का दूध पाना पूरा टोटल डॉक्यूमेंट उसी। इस घटना को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी तथागत पांडे ने बताया कि एक फर्जी जवान को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हुए हैं। रिमांड पर लेने की बात कही है ताकि उससे कुछ और जानकारी हासिल हो सके। বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা হায়দার আলী বাগুলি বলে হায়দার বাগুলি অফ ছত্তিশগড় একজনকে ধরেছি। ওর বাড়ি থেকে আমরা ইউনিফর্ম, তারপরে এয়ারগান এবং আরও আর্মির আইডেন্টিটি কার্ড এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছি। আমরা খবরটা পাই, আমরা তো একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি যে টেনেন্সির ফর্মটা আমাদেরকে ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য একটা ফর্ম আমরা দিয়েছি। ভাড়াটে কারা নতুন ভাড়াটে আসছে, কারণ দুর্গাপুরে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে বসবাস করে আর প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেখানে বাইরের লোক প্রচুর আসে। তো ঝাড়খণ্ড কাছে, সেখান থেকেও প্রচুর লোক আসে। তো সেই জন্য আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ আমাদের সিপি সাহেব নিয়েছেন, যে আমাদেরকে ডাইরেকশন দিয়েছেন যে সেইভাবে আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে। তো আমরা পাড়ায় পাড়ায় সেটা করেছি বিভিন্ন জায়গায়। তো তার এটা একটা পজিটিভ রেজাল্ট আমরা মনে করি যে আমরা ইনফরমেশনটা সেই লেভেল থেকেই পেয়েছি এবং সেই অনুযায়ী ভেরিফিকেশান করে দেখা গেছে যে এটা ফেক আর্মিমেন্ট এবং নিজেকে একজন আর্মির কমান্ডো হিসেবে পরিচিতি দিয়ে তার কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল, কেনই বা সে ইউনিফর্ম আর্মির প্রকিওর করেছিল, কেনই বা তার ফেক আইডেন্টিটি কার্ড, বা কেনই বা সে এই বন্দুক টন্দুক রেখেছিল ফেক। এটা দুটো, একটা কার্বাইন টাইপের আর একটা এয়ারগান টাইপের পাওয়া গেছে। ওগুলো কি নাম স্যার ছেলেটা? তো ছেলেটার নাম হচ্ছে হায়দার বেগুলি অফ ছত্তিশগড়। তো আরও ডিটেলস ইনকোয়ারি আমাদের চলছে এবং আজকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করেছি এইসব ফলস এবং ফেক জিনিসপত্র রাখার জন্য আর নিজের আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য ফেক। ছেলেটার বাড়ি ছত্তিশগড়? ছেলেটার বাড়ি ছত্তিশগড় এবং আমরা একটা বাইকও সিজ হয়েছে। তো আমরা এটা আরও ভালো করে ইনভেস্টিগেশন করব, তার কারণ যে কেন এখানে এসেছিল বা কী করছে। আমরা রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করেছি, 7 দিন রিমান্ড চেয়েছি, আজকে কোর্টে প্রডিউস করেছি এবং দেখি রিমান্ডে নিয়ে আরও কী আমরা বার করতে। বেশ কিছুদিন ধরেই আছে। বলছি স্যার ওই এই সুভাষপল্লী আন্ডার দুর্গাপুর পুলিশ স্টেশন। বলছি স্যার এই ছেলেটি ছাড়া আর ওনার স্ত্রীও থাকছেন, ওনাকে কিছু? ও আছে, স্ত্রী আছে, 2টি বাচ্চা আছে। তো আমরা দেখছি, স্ত্রী বিলিভ করছে যে এটা ও আর্মি ম্যানই আছে। এটা যাই হোক, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, 2টো বাচ্চা আছে। তো ওই অ্যাঙ্গেলটা আমরা দেখছি। বলছি স্যার আর্মিকে কি জানানো হবে মানে আপনাদের তরফ থেকে? दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। भीषण सड़क हादसे में 10 पहिया वाले ट्रक के एक खलासी के 2 हाथ और 1 पैर कट गई। घटना जामुड़िया थाने के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बेनाली मोड़ के समीप सुबह 6:30 बजे के आसपास हुई। ज्ञात हुआ कि रानीगंज से आसनसोल की ओर जा रहा बिहार नंबर प्लेट वाले एक 10 पहिया वाहन ने बेनाली मोड़ पर पत्थर लदे एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वाहन में कोई सामान नहीं था। स्थानीय लोगों का प्रारंभिक अनुमान है कि कार चालक को नींद आ गई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची श्रीपुर चौकी की पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चालक तथा खलासी को गंभीर हालत में आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। रविवार की सुबह हुई इस दर्दनाक सड़क हादसे को देखकर क्षेत्रवासी सहम गए। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न वाहनों का खड़े होने से दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बंगाल आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत 7 नंबर प्लेटफॉर्म के निकट एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से ठगी करने के आरोप में आसनसोल नॉर्थ थाना ने 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों धर दबोचा। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत 2 मुहा पुल स्थित रहने वाले दीपक राम का आरोप है कि मोहशिला चक्रवर्ती मोड़ इलाके की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने खुद को आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम के साथ अच्छी सांठगांठ होने की बात बताकर यह कहा कि आसनसोल डिवीजन में टीटी के पोस्ट पर डीआरएम साहब को एक कोटा मिला है, जिस कोटे के लिए बहुत लोग उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। लोग 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है, पर वह किसी अच्छी और जरूरतमंद को यह नौकरी दिलाना चाहती है। उक्त महिला ने दीपक राम को नौकरी ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया, जिसके किए महिला ने उक्त नौकरी के लिए दीपक से 6,60,000 रुपए की डिमांड की। रकम बहुत ज्यादा होने के कारण दीपक ने उक्त महिला को अपने पिता संजय राम से मिलवाया। संजय राम 2 मुहा पुल के पास तरबूज और कुछ फल की बिक्री करते हैं। दीपक के पिता संजय राम ने महिला की उम्र और बात करने के तौर तरीके से उसकी बातों में आ गए और उक्त महिला को पहले एडवांस के तौर पर 5,000, फिर 15,000, फिर 75,000 रुपए कैश 3 किश्तों में दिए। महिला ने दीपक को कुछ कागजात भी दिखाए, जिन कागजातों में आसनसोल डीआरएम के नाम पर पैसे की लेन देन की रिसीव भी थी। साथ में रविवार को 50,000 रुपए की मांग करते हुए बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द जुगाड़ करने को कहते हुए कहा कि उसको जल्द से जल्द आसनसोल में टीटी के पद पर ज्वाइन करना होगा। पैसे की लुप्त महिला द्वारा बार बार प्रेशर देने से दीपक और उसके पिता संजय को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से मिलकर सलाह ली। तब जाकर पता चला कि उक्त महिला एक बड़ी ठग है, जो बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर अपने जाल में फंसाती है और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद दीपक ने आसनसोल आरपीएफ और नॉर्थ थाना को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने उक्त महिला दीपक से पैसे लेते रंगे हाथ धर दबोचा और नॉर्थ थाना ले गई, जहां पता चला कि महिला पहले भी कई बार रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर चुकी है। वहीं पुलिस ने महिला की उम्र को देखते हुए कहा कि अगर वह दीपक के पैसे लौटा देती है तो ठीक है, नहीं तो उनको दीपक की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार करना होगा। वहीं महिला ने 25 तारीख तक ठगी के पैसे वापस लौटाने की बात कही है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। प्रत्येक महीने स्टेथॉक्स हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। रविवार को बांकुड़ा शहर के प्रताप बागान स्थित हेल्थ केयर सेंटर एवं शंकरडीह के बावरीपाड़ा में 2 जगहों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों का खून की जांच, प्रेशर, ईसीजी इत्यादि कराया गया। मौके पर उपस्थित स्टेट हेल्थ केयर के कर्णधार शुभम बैनर्जी, सुदीप्त भंडारी तथा चिकित्सक डॉक्टर शुभम हजरा एवं डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी ब्लड डोनर फोरम के जिला कन्वीनर कार्तिक मोल समेत अन्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस बारे में उपस्थित सुदीप्त भंडारी ने कुछ बातें कही। আমাদের একাডেমির মেম্বার সুভাষ পাল 21 মে এই তারিখে এভারেস্ট সামিট করেন। তো তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তো সেই উপলক্ষে আমরা প্রত্যেক বছর এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করি। তাতে সকালবেলাতে আমাদের তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং একটা স্মরণ সভা এটা আমরা করি। আর 9টা থেকে আমাদের একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে আমাদের একাডেমির মেম্বাররা যারা আছেন, এছাড়া আমাদের সাথে যে সমস্ত সংগঠন যুক্ত আছেন বা সাধারণ মানুষ, এই মোট 42 জন ছেলে মেয়ে আমাদের আজকে রক্তদান করলো এই উপলক্ষে মিলন প্রতীক। বাঁকুড়া से अनुप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में बंगला नेपाली भाषा के प्रश्न पत्र में पास करना अनिवार्य होगा। यह 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। पहले पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में बंगला के साथ साथ हिंदी, उर्दू, नेपाली भाषा में भी विद्यार्थी परीक्षा दे पाते थे, लेकिन नए नोटिफिकेशन से हिंदी और उर्दू को हटा दिया गया है, जिसके खिलाफ आज रानीगंज के अंजुमन इमदाद वाहिमी कार्यालय में अंजुमन इमदाद वाहिमी तथा कारवाए आदम नामक संस्था की तरफ से विरोध जताया गया और एक संवाददाता सम्मेलन की गई। इस विषय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक मुबारक अली मुबारकी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस की परीक्षा में जिस तरह से हिंदी और उर्दू भाषा को हटा दिया गया है, यह काफ़ी गलत है। इस मौके पर मुबारक अली मुबारकी के अलावा डॉक्टर सावरा खातून हिना, डॉक्टर मोहम्मद शमशेर आलम, अधिवक्ता कालिम खान, सेवानिवृत्त शिक्षक फिरोज खान, शिक्षक अबू हैदर, शहनवाज हुसैन आदि उपस्थित रहे। गुजारिश करते हैं और कहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करें, हमें क्यों न मिलेगा। उसी तरह से अभी हुकूमत मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं, हमारी दीदी जो हमारी माँ की तरह भी हैं और ममता जिनका नाम भी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव शोबा हो, पुलिस का मामला हो या बहुत सारे ऐसी जगहें बहुत सारी जहाँ पे हमारा पहुँचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आपकी आमद के बाद 2011 से 2022 तक बेशुमार WBCS ऑफिसर बने उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात। बहुत सारे हुकूक हमें हासिल हुए, बहुत सारी मराहत हासिल हुई, तो फिर यह सिलसिला चलता रहना चाहिए था। किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम अपनी माँ जैसी ममता रखने वाली वज़ीर आला से जाने अनजाने में जो ये गलत फैसला ले लिया है, हम उर्दू, हिंदी वालों और संथाली के वालों के प्रति उसके लिए एक एहतजाज पूरी रियासत में शुरू हुई है और उसी एहतजाज का हम एक हिस्सा हैं। ज़ुबान किसी भी कौम की एक पहचान होती है और ज़ुबान को जब रोटी रोजी से जोड़ा। गुजारिश ये है कि हुकूमत और ये जो महफिल सजी है, ये एहतजाज नहीं है, इसको हम लोग गुजारिश की शक्ल में देखें। ये एहतजाज नहीं है और ये किसी से एहतजाजी डिमांड भी नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी वजूद को बचाने के लिए इस किस्म की महफिल का इनेकाद किया है। और ये बात है कि ज़ुबान ज़िंदा होती है और ज़ुबान को कायम करने के लिए भी रोजी रोटी से को रखा जाए, संथाली को रखा जाए, और इसी के सिलसिले में बात हो रही है। क्योंकि देखिए, आप लोग बेहतर तौर से समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो उसकी मादरी ज़बान सबसे बड़ी ज़बान होती है, उसी से उसकी पहचान और शनाख्त होती है। हम ख्वाब भी देखते हैं तो अपनी ज़बान में ख्वाब देखते हैं। हमारी शहरियत ख़त्म हो सकती है, हमारा मुल्क बदल सकता है, हमारा शहर बदल सकता है,
लेकिन ज़बान कभी नहीं बदल सकती। ज़बान के ज़रिए हम लोग पहचाने जाते हैं हमारे। हावड़ा रेफरेंस मेमो नंबर 361 पार WBCS ID ये नंबर है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू ऐड उर्दू, हिंदी एंड संथाली विद बंगाली एंड नेपाली एज द क्वालिफाइंग पेपर A इन WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। मैंने ऐड इसलिए लिखा है कि ऑलरेडी अब क्या है, उर्दू, हिंदी, संथाली बाहर हो चुकी हैं, तो मैंने उसको ऐड करने के लिए कहा। रिस्पेक्टेड मैम, विद रेफरेंस टू द अबव, आई अपना नाम देंगे, सन डॉटर ऑफ रिसाइडिंग एट an aspiring candidate of WBCS executive examination would like to draw your kind attention towards the following facts for your kind consideration and sympathetic action. Madam, I have been a student of an Urdu medium school with Urdu and English as the first and second language respectively. In my school, Bengali or Nepali languages were not taught. Now, if के इमाम ईदैन जो ईद की नमाज़ रेड रोड में होती है, उसके जो इमाम हैं मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब, और नाखुदा मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना शफीक कासमी साहब, और मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी शहूद आलम साहब, ये 3 लोग गए थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने नवलनों में। और उन्होंने जाके ये रिक्वेस्ट किया था कि उर्दू हिंदी मीडियम वालों के लिए बंगला कंपलसरी WBCS में मत कीजिए। और 11 अप्रैल के अखबार मशरिक में फ्रंट पेज में ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी ने वादा किया है, बल्कि अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि उर्दू वालों के लिए बंगला कंपलसरी नहीं होगा। तो हम लोग तो बहुत इत्मीनान से थे कि दीदी ने जब कह दिया है तो अपनी बात पर अटल रहेंगी। लेकिन अचानक पता चला कि ये 10 अप्रैल से 25 दिन पहले यानी 15 मार्च को ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका था, गैजेट हो चुका था। तो ये हम लोगों के लिए एक अचंभे की बात है। तो बहरहाल दीदी चाहेंगी तो आज भी हो जाएगा, और हम लोग को उम्मीद है कि दीदी हम लोगों की बात ज़रूर सुनेंगी। ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसको बर्बाद होने नहीं दें। मुबारक अली मुबारकी मेरा नाम है। मैं खड़गपुर अजीजिया हाई स्कूल में टीचर था। 2020 अप्रैल में मैं रिटायर हो गया हूँ, कलकत्ते में रहता हूँ। और ये तहरीक मैंने असल ये जो लेटर लिखने का मामला है ये मैंने शुरू किया है, लेकिन ये है कि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अब जैसे कि सैफुल इस्लाम साहब हैं हिना, उसके अलावा हमारे शमशेर भाई आ गए, कलीम भाई आ गए, तो बहुत से लोग आते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। तो पूरे बंगाल में लोग मुझे बुला रहे हैं, और ये लेटर जो मैंने लिख के रखा है टाइप करा के ले जाता हूँ। बच्चे इसमें बड़ी खुशी साइन कर रहे हैं, और हम लोग रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लेटर नवल में जा रहे हैं। मैदाब अभी जानते हैं सारे जहाँ में हमारे ज़बान में। देखिए WBCS का इम्तहान हम 2-3 बार दिए हैं, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए हैं, मेंस तक गए हैं। ऐसा है, और PSC का भी इम्तहान देते हैं। तो PSC का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो नॉन बंगाली है, जैसे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, वे लोग जाते हैं तो इनसे पहले एक दिखाया जाता है बेसिक नॉलेज आप जानते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब गए तो हमको एक पेपर अखबार दिया गया कि आप अपनी बांग्ला पढ़ो। हम बांग्ला पढ़ के दिखाए, वो बोला बांग्ला लिखते जाए ना, हम लिखने बोला, हम लिखेंगे। अब यहाँ ऑर्डर आ गया है कि उर्दू को हिंदी को हटा दिया गया और 300 नंबर का कंपलसरी पेपर कर दिया गया। तो अब बताइए, ऐसे में तो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट तो फेल, अब तो खुद स्टूडेंट, अब तो क्या कॉल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से महरूम हो जाएंगे। तो हम लोग आला ओहदे पे कैसे जाएंगे? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।